السلام علیکم ویورز، محمد جہاں چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور ہمارا پروگرام ہے ریئل ٹاک. میرے ساتھ موجود ہیں زیبا ناز صاحبہ، اور اس کے علاوہ زیبا ناز صاحبہ آپ کو پتہ ہے سینئر جو ہیں وہ نائب صدر ہیں کافلی کی، اور اونلی لونلی یہ اسپوکس مین ہیں مسلم لیگ کاف سے. میرے ساتھ موجود ہیں احسان ناز صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے صحافت میں بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ان سے بھی آج کے جو پولیٹیکل سنیریو ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. میں زیبا ناز صاحب سے گزارش کروں گا کہ موجودہ ضمنی الیکشنز کے تناظر میں گورنمنٹ جو ہے وہ مراعات دے رہی ہے ان حلقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ جہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ عنایات جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے، وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ دونوں کی طرف سے عنایات ہو رہی. تھوڑا سا بتائیے، اور بتائیے کہ آگے الیکشنز پہ یہ کتنا افیکٹ کرے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ الیکشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں، نتائج کیا ہوں گے. جنزیب صاحب، یوٹیلیٹی سٹور بنانے سے حکومتیں ووٹ نہیں لے سکتی، اور جو شہباز شریف صاحب نے ہر گھر کے باہر یوٹیلیٹی سٹور بنانے کا جو ایک مما کھڑا کر دیا ہے کہ آپ ہر جگہ کو انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور بنانے کے لیے ہر چیز کو استعمال کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا سختی سے آرڈر لینا چاہیے. عوام کو اور حکومت کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پنجاب کے جتنے بھی حلقے ہیں جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور بنانے کا جو ایک بڑا منبع کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ بالکل غلط کام ہے. لوگوں کو کتنا لالچ دے رہے ہیں، کتنا عوام کی ریلیو کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام ہمیں ووٹ ڈال دے. آپ کو لگتا ہے یہ جو یوٹیلیٹی سٹور انہوں نے بنا دیے ہیں یہ افیکٹ کریں گے اور الیکشن کو ریگ کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، اور یہ افیکٹ کرنے کا سب سے بدترین طریقہ یوز کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. اور یہ جو انہوں نے یہ یوٹیلیٹی سٹور بنانے کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا نا اپنے، وہ سب سے بدترین ان کا یہ طریقہ کار تھا. اور یہ کھولنے سے نہ تو ان کو ووٹ ملے گا، نہ عوام ان کے پیچھے چلے گی، اور نہ ہی عوام ان کو ووٹ دے گی. احسان صاحب، سوری میں آپ کو احسان صاحب یہی کوشچن آپ کے لیے، موجودہ حکومت اور اس کے ضمنی الیکشن کے تناظر میں جو اقدامات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افیکٹ کرے گا؟ بہت شکریہ جادیب صاحب. یہ جو ضمنی الیکشن ہے نا، یہ حکمرانوں کو لے ڈوبے گا، کیونکہ یہ 20 سیٹیں جو ہے نا اس نے فیصلہ کرنا ہے آئندہ پنجاب میں اور مرکز میں کون حکومت کرے گا. آئندہ جو جنرل الیکشن ہے ان میں کون سی پارٹی برسر اقتدار آئے گی. اب ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے اب دیکھو یوٹیلیٹی سٹور جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، یہ صوبے کا نہیں ہے. جبکہ اس کا اعلان جو ہے میاں حمزہ شہباز نے کیا ہے، اور امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. اب میڈم جو بات کر رہی تھی نا، یوٹیلیٹی سٹور ٹرک کی شکل میں وہ گھوم رہے ہیں ان علاقوں میں، ان حلقوں میں یہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. یہ حلقہ 170 جو لاہور کا ایک حلقہ ہے کہ میں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا ہے کہ وہاں پہ ٹرک کھڑے ہیں اور لائنیں لگی یوٹیلیٹی سٹور. اب دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز 10 روپے 15 روپے چیز سستی کر دی گئی تو کوئی آپ احسان تو نہیں کر رہے، آپ ان کے منہ پہ لا کے مار رہے ہیں کہ ہم آپ کو گھی جو ہے وہ 100 روپے سستا دے رہے ہیں، آپ آٹا آپ کو 30 روپے سستا دے رہے ہیں، ہم آپ کو چاول 90 روپے سستا دے رہے ہیں. بات بھائی ہے یہ ہماری جیب ہے، ہم اپنی جیب سے نکال رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جس سے آپ، لیکن اس میں آپ بندر بانٹ ضرور کر رہے ہیں کہ آپ کے کونسل بانٹ کھا رہے ہیں، آپ کے ایم پی اے کھا رہے ہیں، آپ کے مسلم کی ورکر کھا رہے ہیں جو کہ نوچ رہے ہیں، اور ہمیں آج آگے وہی چند لوگ جو بھاگ کے وہاں پہنچ جائیں گے ہوں گے. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کمائی اپنا مال ہے. لیکن یہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح عوام کو دھوکہ دیں گے اور عوام میں ووٹ دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، جو حمزہ شہباز نے، یہ بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹ تھا بجلی کا، اس میں اس نے ٹانگ اڑائی اور یہ کہا یہ 100 یونٹ جو تک جو لوگ جلاتے ہیں نا ہم ان کو بل معاف کرتے ہیں. میں اسے بہت احسن اقدام سمجھتا ہوں. یہ بہت اچھا اقدام تھا
کہ 4.5 करोड़ जो लेकिन लोग इलेक्शन कमीशन ने तो उसको खत्म कर, उन्होंने कहा वो 17 जुलाई के बात मैं यही कर रहा हूँ, आप बात मैं यही करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त किया जब इलेक्शन हो रहे थे। जी अब इसमें जो पीटीआई चलेगी कोर्ट में, हाँ, उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया। हाँ, देखो ना, एक रिलीफ जो वो देना चाह रहे हैं और वो दे नहीं सकेंगे, क्योंकि 4.5 करोड़ लोगों को 3,000-2,500 रुपये महीना ही देना है ना। मुझे तो लगता है प्लानिंग हुई जैसे नहीं। कि दूसरी तरफ से आपने अपोज करना है ताकि कोई अवामी हल्कों को किसी तरफ से अगर कोई रिलीफ मिलता है, चाहे प्री पोल रिगे के लिए ही मिलता है, तो आप लेने दें, उसको भी रोक दिया जाए। आप लेने दें ताकि वो नंगे, उनको पता चले ये दे नहीं सकते, इन्होंने सिर्फ ऐलान कैसे किया? दूसरा ये कि एक वजीर आला, एक ऐलान जो वजीर आज़म कर सकता है वो एक वजीर आला कैसे कर सकता है? चाहे बाप बेटा हो, चाहे जो भी हो। सर बात ये है कि इदारों का, इनकी तो बात ही इदारों का जो इस्तेकाक है उन्होंने उस डोमेन में बात करनी है। बात ये है कि अगर पाकिस्तान में ये जो लोचर फंग लुटेरे गवर्नमेंट है, ये इस तरह से काम कर रही है कि जिसका जो इस्तेकाक है वो उससे आगे बढ़ के तजावज़ करके जो मर्जी करता फिरे। पाकिस्तान तो जैसे यूँ हो गया कि खाला जी का बड़ा हो गया कि जिसमें जो मर्जी आप करते फिरे। मैं यहाँ ये ऐड करता हूँ, देखो आप लोचर फंग लुटेरे जो मर्जी कहें, हाँ जी, मैं कहता हूँ कि किसी के हाथ से कोई भी अगर भला हो जाए ना तो वो हो जाना चाहिए, उसको अपोज नहीं करना एहसान साहब, चाहिए। ये उनको नंगे, एक मिनट उनको नंगे होना दें, हाँ जी, ताकि वो अगर ये बिजली के बिल फराहम नहीं कर सकते जी, तो लोग उनकी तरफ थूके। देखिए इलेक्शन कमीशन उनका इलेक्शन देखे ना, इलेक्शन कमीशन ने साथ ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने ऐलान इस वजह से किया था, इलेक्शन कमीशन ने मना कर देना था और कल को वो कोई और बंदा भी खड़ा कर देंगे और वो अपोज जाके कर देगा। ये तो पॉलिटिकल ट्रिक्स हैं जिनको ये इस्तेमाल करना है और कुछ भी पीटीआई को नहीं करना चाहिए, पीटीआई को नहीं करना चाहिए, पीटीआई को नहीं करना चाहिए। जब वो ये इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस्तेमाल अलग बात है। हाँ जी, अब देखो ना, अगर वो कहता है तो उसको झूठ बोलना तो नंगा हो जाएगा, बिल्कुल। तो वैसे क्या कर, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मेरी अभी ये बात भी हुई है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साबुक जो इत्तलाह से मेरी अभी फोन पे बात हुई उनसे, तो मैंने कहा यार ये क्या आपने बुरा काम किया, बिल्कुल आपको ये चलने देना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचने के बाद कहा कि शाम से मैं परसों आऊँगा फिर मुशाफा। वो ये ज़्यादा पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट यही बात कर सकते हैं। अच्छा ज़ेबान साहब मुझे बताइए कि क्या ये अफेक्ट करेगा, क्या ये प्री पोल रिगिंग जो हो रही है ये अवामी हल्कों को बिरयानी की प्लेट की तरह इंस्पायर करने में कामयाब होगी कि नहीं? देखो और कल को ये टर्म तो नहीं इस्तेमाल होगी, जैसे अभी कहते हैं बिरयानी की वोट पे, बिरयानी की प्लेट पे जो है वो पाकिस्तानी कौम वोट देती है, अब वो कहेंगे आटे के थैले पे वोट दे रही है, ये घी के पैकेट 100 रुपए भाई, 100 रुपए घी के पैकेट पे वोट दे रही है। तो क्या ये टर्म मुफ्त तो नहीं दे रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। इसमें भी आवाम का खून निकाला जा रहा है और इसमें भी आवाम को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और आवाम बिल्कुल इस बात में ना आए कि ये आपको दिखावा कुछ और करके और आपसे जो वो वोट की शक्ल में आपसे डिलीवर करवाना चाह रहे हैं वो आपके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कितना फैक्टेबल साबित होगा। ये जो दिखा के लोगों को दिखावा और है और काम और है इनके। और खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वोट देते वक्त इन चीज़ों को लाजमी सोचें कि ये लोग आखिर चोर लुटेरे डाकू हैं, ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। आज मैं एक क्लिप्स देख रही थी छोटा सा, वो लोग जो वोट सिर्फ लेने के लिए आवाम के पास होते हैं और बाद में उन लोगों ने कभी उन रस्तों का गली भी नहीं कभी याद रखी कि हम यहाँ पे 10 दफ़ा आके इन घरों से वोट लेके जाते हैं। आज एक, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक मेंबर गए हुए थे किसी घर में और घर के बाहर एक चिक्कू रख के वो वहाँ बैठ गए और अंदर से एक औरत आई है तो उसने कहा क्या बात है बेटा, तो कहने लगा कि मैंने आपका वोट लेना है। तो उसने कहा मैंने तो तुम्हें वोट नहीं देना, मैं आप जमात की भी नहीं बात करूँगी कि वो कौन सी जमात थी, लेकिन क्योंकि ये पता आप सबको चल जाएगा कि वो बंदा भी कौन था और वो औरत भी कौन थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं जी मां जी तुहाडे कोल वोट लैके जाना है। उन्हें कहा कि तुसी साडा हाल कीता बड़ा बुरा, तुसी इन्ने अरसे दे विच साडे ना आटा ना दाल
ना बच्चों की घी, ना बच्चों की एजुकेशन, ना हमारी कोई दीनी मामलात, ना दुनियाई मामलात में आप लोगों ने हमारी एक ज़रा सी भी हेल्प नहीं की, हम आपको वोट नहीं देंगे। फिर उस बंदे ने शर्मिंदे होके कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, 3.5 साल च नहीं ना कीता ते हुण करांगे, तुसी साडा साथ दियो। औरत बेचारी बुजुर्ग थी, उसने उसके कंधे पे हाथ मारा और कहा अच्छा फिर तुहानू वेख लेने आ। वाह, इसका मतलब ये है कि आप अंदाज़ा करें कि ये निज़ाम जो है हाँ जी। वो चूँकि कमज़ोर तरीन निज़ाम है और ये डिलीवर करने के काबिल नहीं है, तो ये डिलीवर नहीं कर सकता। ना ये निज़ाम डिलीवर कर सकता है, ना ये निज़ाम डिलीवर करेगा। ये निज़ाम सरमायादारों का और जागीरदारों का और ज़ारदारों का ये निज़ाम है। इस निज़ाम में ना कोई आम बंदा जो है वो आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से प्री पोल रिगिंग होगी, इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और आवाम को इसी सिनेरियो में ही डिस्कशन, इसी सब्जेक्ट के ऊपर ही प्रोग्राम्स उनको दिखाए जाएंगे और इसी चक्कर में डाले रखा जाएगा ताकि अवाम इससे बाहर निकल के सोच ना सके। भूख की कहते हैं मुफलसी इससे लताफत को मिटा देती है, भूख तहजीब के सांचों में ढल नहीं सकती। बेशक तहजीब जो है वो तब पनपती है जब पेट जो है वो भरा हुआ होता है, और इस कौम का पेट जो है वो हमेशा खाली इस वजह से रखा गया है कि ना ये पेट के दोज़ख को भर सके और ना ये तहजीब की तरफ आगे मूव कर सके। कौमें तरक्की करती हैं वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ, और सबसे पहले उसमें भूख पहला जो है अवामल है। आप अंदाज़ा करें कि भूखे पे जो इस्लामी कवानीन हैं, जो ताज़ीर है, वो भी वैसे नहीं लगती जिस तरह से एक आम नॉर्मल बंदे पे लगती है। आप अंदाज़ा करें कि भूख की अहमियत कितनी ज़्यादा है, और जब भूख जो है वो ईमान तक पे अफेक्ट कर सकती है तो ये जो सानवी मामलात हैं, ये तो कोई हैसियत, ये जो दुनियावी मामलात हैं, ये तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में जब तक ये निज़ाम इसी तरह से चलेगा, आपका और मेरा इस्तेसाल होता रहेगा। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, ये ज़रदारों का निज़ाम है और उनकी लौंडी है, उनके घर की खेल है। ये जिस तरह से चाहते हैं ये इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से चाहते हैं अवामी इस्तेसाल करते हैं। मौजूदा जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा साबित होगा मेरे नज़दीक, और ये टोपी ड्रामा जो है वो यकीनन नताइज जो हैं, या तो नताइज जो हैं वो वन साइडेड नताइज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, या फिर इन जो है वो इलेक्शंस के नताइज पे इफ़ेक्ट होने के लिए बड़े पैमाने पे ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरी सूरत ये है कि एक बहुत बड़ा जो है वो द्रोकाल होगा, जो आपस में बहुत बड़ी जो है वो लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं ज़िमनी इलेक्शन में, क्योंकि ये 22 सीटें जो हैं वो इक़्तिदार की 20 ये जो 20 सीटें हैं, ये इक़्तिदार का हुमा है, ये उसको करेगी, ये किसके सर पे बैठेगा उसको डिफ़ाइन करेंगी, और इसके लिए सरदार की बाजी लगाने के लिए दोनों साइडें तैयार हैं। और ये दोनों साइडें जो हैं वो आखिरी हद तक जाएंगी। इसमें अवाम नारे मारेगी, लुटेगी, और अवाम जो है वो डंडे खाएगी, और अवाम जो है वो रिग होगी, और इसी तरह अवाम को आधा जो है वो सच बता के जो है वो एक निकम्मा किस्म का जो और फजूल किस्म का जो है वो बेनिफिट और रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। ये सारी चीज़ें इसी तरह से ही हो रही हैं, होती रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी जब तक मैं और आप बदलेंगे नहीं या सोचेंगे नहीं कि हमने तब्दील होना है। कौमें, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मैंने और आपने तब बदलना है जब हम अपने अंदर से तब्दीली के लिए ख्वाहिश हमारे अंदर जन्म लेगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।